Hello everyone, today I am going to discuss the next topic, that is a Tower of Hanoi. In the previous video, we have already discussed the concept of recursion. So what was the recursion? So the definition, recursion is anything which is defined in terms of itself. Okay, a function is said to be recursive, it is defined in terms of itself. In the same way, a program is said to be recursive if it calls itself. Okay. So what was the property of a recursive function? So the first property is the base criteria. There must be a base criteria for which the function does not call itself. यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी condition होना चाहिए जिस पे function अपने आप को call करना stop करे. And the second thing is for each time the function does call itself directly or indirectly, it must be closer to the base criteria. That is, it uses an argument closer than the one. जो भी आप पैरामीटर उसमें प्रोवाइड करते हैं उनको किस तरफ मूव करना है, उनको बेस क्राइटेरिया की तरफ मूव करना है. Suppose the base criteria is 1 and you start the computation from 4. So you move from 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1 like that, so that आप base criteria को achieve कर सकें. Now there are 3 type of recursion. The first one is a tail recursion, another one is a binary recursion, and then multiple recursion. So today I'm going to discuss the concept of multiple recursion. What is the definition of multiple recursion? So multiple recursion occurs whenever there are more than 2 recursive calls for each base criteria. For example, Tower of Hanoi. So what is a Tower of Hanoi? Basically, it is a puzzle. Okay, so it consists of 3 towers A, B, C, and a set of disc of different decreasing size on first tower. आपके पास में different size की disc हैं जो कि पहले tower के ऊपर put किया हुआ है उन सबको. और and the task is this. The objective of this, you move the disc to another tower with following constraints. आपको एक tower से फर्स्ट टावर से लास्ट टावर में, सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर में मूव करना है. कंडीशन इज दिस, सो यू कैन मूव ओनली 1 डिस्क एट ए टाइम. ओके, आप एक टाइम पर एक डिस्क को मूव कर सकते हैं. सेकेंड इज नो डिस्क कैन बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क. स्मॉलर डिस्क के ऊपर आप बिगर डिस्क को पुट नहीं कर सकते. सो देयर आर 2 कंडीशंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ these 2 conditions, the objective is this. इस animation के through आप समझ पाएंगे कि what is the problem. So here 3 towers. The first tower is A. You can आप देख सकते हैं, this is the first tower and this is second tower and this is the third tower. You can say that this is the source tower and this is the destination tower. Okay, आपको सारी डिस्क सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव करना है. एक टाइम पर एक डिस्क को मूव करना है. ओके, and smaller disk के ऊपर bigger disk को put नहीं करना है. Okay, now this is the auxiliary tower that is a pin B. इसको आप use कर सकते हैं help के लिए, आप अगर disk को move कर रहे हैं. So this is the intermediate tower. So आप कैसे solve करेंगे? So first आप smaller disk को move करेंगे from pin A to pin C. So the first move is from pin A to pin C, means the tower A से tower C पे shift किया. Now the second move is move from pin A to B. आपने second move दिया pin from A to B. Now after that you can move from C to B. आप बड़े के ऊपर छोटा put कर सकते हो, right? So the third move is, okay, आपने tower C से disk को move किया और tower B पे put किया. Now after that आपने लार्जर डिस्क को, जो थर्ड डिस्क था, उसको पिन ए से पिन सी की तरफ मूव किया. सो दिस इज द फोर्थ मूव. नाउ आफ्टर दैट स्मॉलर डिस्क को आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम टावर बी टू टावर ए. ओके, सो लाइक दिस. नाउ यू आर ओपन. आप टावर बी से मूवमेंट ले सकते हैं टावर सी की तरफ, क्योंकि टावर सी पर आपका लार्जर डिस्क है और टावर बी में स्मॉलर डिस्क है. सो दिस इज द नेक्स्ट मूव, मूव फ्रॉम बी टू सी. नाउ एट लास्ट, दिस इज द फाइनल मूव. You can move from pin A to
pin C. Okay, this one. So there are 7 moves: A to C, A to B, C to B, A to C, B to A, and B to C and A to C. तो आपने 7 मूव्स लिए और सारे के सारे डिस्क जो हैं वो आपके टावर ए से पिन सी पे, सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता है. So this is the case of 3 disks. Okay, so this is the puzzle. Now how we can solve this puzzle? So we can solve this puzzle with the help of recursion, and this is the best example of multiple recursion. Now अब इसको समझने की कोशिश करेंगे. What will be the base criteria? अगर आप रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं तो व्हाट विल बी द बेस क्राइटेरिया. सपोज आपके पास नंबर ऑफ डिस्क 3 नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ डिस्क सिर्फ 1 है, लाइक दिस. सो दिस इज द केस नंबर 1, गिवन ओनली 1 डिस्क. सो आंसर क्या होगा? सिंपल मूव. आप सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर के ऊपर एक मूव देंगे. सो इन दिस केस which is the base criteria, the disk can move from pin A to pin C. Okay, like this. So this is a move from pin A to pin C. Now I'm going to correct here, like this. Okay, so only one move from A to C. Now कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप 2 डिस्क ले सकते हैं. सो द केस नंबर 2, सपोज यू हैव ओनली 2 डिस्क. सो व्हाट विल बी योर आंसर? यहाँ पे हम एल्गोरिथम के जो कॉन्सेप्ट है, जो रिकर्सिव बेस क्राइटेरिया के से सेपरेट, अगर उसमें क्या कॉन्सेप्ट हमें करना है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर हो पाएगी इन केस ऑफ 2 डिस्क. सो इन दिस केस द फर्स्ट मूव आपका कहां से होगा, यानी आपकी जो पहली डिस्क है वो मूव करेगी पिन ए टू पिन बी. ओके, डेफिनेटली आप कहां पे मूव करेंगे? पिन ए से पिन बी की तरफ मूव करेंगे, नंबर 1. उसके बाद में डेफिनेटली आप पिन ए को मूव करेंगे पिन सी के पास, एंड देन यू कैन मूव अनदर मूव फ्रॉम पिन बी टू पिन सी, लाइक दिस. सो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इसको ऑक्सिलरी टावर के ऊपर पुट कर दिया. Now this is the first move, and the second move from pin A to pin C, and the third move from pin B to pin C. So there are only 3 move. तो ये हमारे कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं कि हम अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही. So now let us discuss the understanding. So the following observation can be made. The first one is, in order to move the largest disk from pin A to pin C, we must move the smaller disk, that is the last disk, move the smaller disk from pin A to pin B. Suppose there are 3 towers like this, A, B and then C. और आपके पास में कुछ डिस्क हैं. दिस इज द फर्स्ट डिस्क एंड सेकेंड डिस्क एंड देन थर्ड डिस्क एंड देन फोर्थ डिस्क. ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज दिस. फर्स्ट यू मूव टॉप n-1 disks. Okay, and this is the larger disk. So first move these n-1 disk from pin A to pin B. ओके, सबसे पहले आप इन n-1 डिस्क को उठा करके अगर आप यहाँ पे रख पाते हैं तभी आप सबसे लास्ट की डिस्क को मूव कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज ए स्टैक. आप मिडिल डिस्क को मूव नहीं कर पाएंगे. सो आफ्टर दैट द लार्जेस्ट डिस्क विल बी मूव फ्रॉम पिन ए टू पिन सी. ठीक है, ओके. नाउ n-1 डिस्क आपने ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर दी है. नाउ आफ्टर दैट यू कैन मूव फ्रॉम these n-1 disk from tower B to tower C. Okay, after that आप उसके ऊपर रख सकते हैं. So these are our observation. तो पहली हमारी observation क्या है कि आपको अगर सबसे लास्ट डिस्क को निकालना है तो उसके ऊपर की n-1 डिस्क को पहले मूव करना पड़ेगा इंटरमीडिएट टावर के ऊपर. ओके, एंड देन यू कैन मूव द लार्जेस्ट डिस्क फ्रॉम A to C. ओके, आफ्टर दैट द थर्ड ऑब्जर्वेशन, आप जो n-1 डिस्क ऑलरेडी आपने टावर बी के ऊपर पुट की हैं
उनको मूव कर सकते हैं आप कौन से टॉवर के ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर. ओके, सो द एल्गोरिथम विल बी look like this one. So the first, the move, there are move, n is the total number of disk and the name of tower is A, B, C. Okay, so हमने यहाँ पे टॉवर का नाम कैपिटल A, कैपिटल B and कैपिटल C यहाँ पे रखा हुआ है. Now after that, the first condition, suppose you have only one disk, okay, then what will be your answer? Answer is very simple. Move the disk from pin A to pin C. ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा. सो दिस इज योर बेस क्राइटेरिया. नाउ इफ n इज नॉट इक्वल, इफ n इज ग्रेटर देन 1, इट मींस आपके पास 2 डिस्क हैं, 3 डिस्क हैं, 4 डिस्क हैं, या जितने भी डिस्क हैं. सो इन दैट केस हम एल्स पार्ट में आ रहे हैं. सो फर्स्ट मूव द n-1 स्मॉलर डिस्क फ्रॉम पिन A टू पिन B. आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपके पास में देयर आर 3 पिन्स. The same concept जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था. There are 3 tower. Okay, A, basically this is A and this is B and this is C. तो सबसे पहले आप टॉप की n-1 स्मॉलर डिस्क को कहाँ पे मूव करेंगे? आपके पास में यहाँ पर n डिस्क हैं, आप सबसे बड़े वाले डिस्क को छोड़ दीजिएगा. सो n-1 डिस्क को मूव करेंगे A to B. And the second step, the single disk, that is the nth largest disk, only one disk. So this disk move from pin A to C. आप इस सबसे बड़े वाले डिस्क को A से C की तरफ मूव करेंगे. Okay, and the third step is move n-1 smaller disks from pin B to pin C. जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी मूव की थी n-1 डिस्क, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं इसके ऊपर. So यहाँ पे हमने कंडीशन को बाईपास नहीं किया है कि हम एक साथ कई डिस्क उठा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द रिकर्सिव अप्रोच. तो हम ये जो n-1 के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम n-2 डिस्क की बात करेंगे, आफ्टर दैट n-3 डिस्क की बात करेंगे. तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ डिस्क जो रिड्यूस होते जाएंगे. सो व्हेनेवर n becomes 1, so your answer will be move from source tower to destination tower. So this is our approach. Okay, now come to the code part. So this is the C code. So the name of function is move. There are 4 parameters. The first parameter is the number of disk. आप कितनी 100 डिस्क ले रहे हैं, 50 डिस्क ले रहे हैं, 10 डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, या 4 डिस्क की बात कर रहे हैं, 3 डिस्क की बात कर रहे हैं. And 3 parameters after that. This is the source pin, this is the source tower. Okay, and this is the destination. EP is the destination. Okay, end tower, end pin, this is the source pin, and this is the auxiliary pin. Okay, auxiliary pin को हम helping की तौर पे इसको use करेंगे. So start with this. There are, you can see here, starting pin and auxiliary pin and then end pin. Okay, so okay, now start with this curly bracket. The base criteria, if n is equal to 1, suppose the number of disk 1, then simple printf statement आपका यहाँ पर आएगा, move that disk from starting pin to end pin. आपका आंसर क्या आएगा? starting pin to end pin. आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा? move from A to C. So आप समझ सकते हैं कि हमारा मूवमेंट सही हुआ. Now if n is not equal to 1, so at that case start with this curly bracket. Now call this function. आप इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, but the parameter will be n-1. Okay, और स्टार्टिंग पिन से आप सबसे पहले कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? इंटरमीडिएट, दैट इज ए ऑक्सिलरी पिन के ऊपर, बीच की डिस्क पे आप पहले ट्रांसफर करेंगे. कितनी डिस्क ट्रांसफर करेंगे? n-1 डिस्क. एंड देन वंस अगेन कॉल इटसेल्फ. आपने फिर से कॉल किया, बट द फर्स्ट पैरामीटर इज फिक्स, दैट इज 1. व्हाई फिक्स? क्योंकि आप n-1 डिस्क को मूव कर चुके हैं, तो आपके पास में सिंगल एक डिस्क बचा है, दैट इज द nth लार्जेस्ट डिस्क. सो उस सिंगल डिस्क के लिए आपने मूव फंक्शन को कॉल किया. सो n becomes 1, और जैसे ही n 1 होगा तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका आंसर आपके पास में आएगा स्टार्टिंग पैक टू एंड पैक.
Okay, so first parameter is your source and the last parameter is the destination. Yeah, you can say that this is the second parameter basically. So second parameter is the source tower and last parameter is the destination tower. आपने बड़े डिस्क को अब मूव कर दिया, कहां पे मूव कर दिया? सोर्स से एंड सोर्स से एंड के ऊपर. नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज दिस? अब आपको जो रिमेनिंग n-1 डिस्क आपने कहां पे रख दिया था? उन n-1 डिस्क को आपने ऑक्सिलरी पिन के ऊपर पुट कर दिया था, इंटरमीडिएट के ऊपर. नाउ आप वहां से आप उठा करके उसको कहां पे ले जाएंगे? एंड पिन के ऊपर ले जाएंगे, like this. So function once again call itself with value n-1. Okay, now end of this else part, now end of your function. So this is the recursive approach. और यहाँ पे recursive function को हमने more than 2 times call किया है. That's why we can say that this is the multiple recursion. Okay, yeah, you can say that this is the excessive recursion. Now let us understand the working mechanism of this one. Suppose that Tower of Hanoi contain only 3 disks. Okay, and this is the code. So main function से जब आप इसको कॉल करेंगे, so आप मूव क्या देंगे? आप 4 पैरामीटर पास करेंगे. The first parameter is the number of disks. Second parameter is the source tower and last parameter is the destination. यानी A जो है आपका source tower है और B जो है वो intermediate pin है और C जो है वो आपका last tower है. Now अगर आपने इसको कॉल किया because n is equal to 3 which is not equal to 1, तो फंक्शन अपने आप को कॉल मेन से जब आप कॉल करेंगे तो else पार्ट में आएंगे like this. n की किस वैल्यू के साथ आए थे? 3. सो डेफिनेटली यहाँ पर कितना आएगा? दैट इज 3 - 1 दैट इज 2. यहाँ पर फिक्स है दैट इज 1 और यहाँ पर आपका कितना आएगा? 3 - 1 दैट इज 2. ओके, और ABC आपका स्वैप होगा. यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग एंड ऑक्सिलरी, so this is A, C and B is the auxiliary. Okay, and this is the starting peg to end peg. So this is A and C. Okay, और third step में क्या लिखा है? auxiliary pin. It means the B, intermediate pin. आपने सबसे पहले लिखा है, पैरामीटर पास किया है, and starting pin that is a first pin that is capital A, and then end pin is C. So if you put ABC here, अगर आप यहाँ पे लिखते हो this is A और यहाँ पे लिखते हो this is B and यहाँ पे लिखते हो C, so definitely आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? This is A and this is C and this is B. तो आप देख सकते हैं this is ACB. Okay, और यहाँ पे लिखेंगे SP की जगह पर क्या पुट करने वाले हैं? This is A and this is C. तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे AC लिखा है. यहाँ पे AP लिखा है. AP का वैल्यू कितना है? दैट इज ए B and this is A and this is C. Okay, so this is BAC. So आपने जब मेन से इस फंक्शन को कॉल किया, so this is your else part. Okay, because n is not equal to 1, आप else part में मूव कर गए, लेकिन else part में भी फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया. So come to here, आपने अपने आप को फिर से कॉल किया, प्रोग्राम ने अपने आप को फिर से कॉल किया वैल्यू 2 के साथ में. सो इफ n इज इक्वल टू 2, दैट इज आप यहाँ पे फिर से else पार्ट में आएंगे बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू 1. तो आप फिर से else पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे 3 लाइन्स हैं और ये 3 लाइन्स में से पहला लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा. इन द सेम वे अगर आपका n का वैल्यू 1 है, देन आपके पास आपका आंसर आएगा. printf में आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम A to C. Now इस in the same way अगर n का वैल्यू 2 है के साथ में आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी आप else पार्ट में जाएंगे बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू 1. ओके, सो कम टू दिस वन. अभी हम नेक्स्ट लाइन में तो जा ही नहीं सकते. so, आपने फंक्शन को कॉल किया n की वैल्यू 2 के साथ, उसके बाद में फंक्शन को कॉल किया n की वैल्यू 1 के साथ. सो इफ n इज इक्वल टू 1 के साथ आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपका if पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज A goes to C. So if n is equal to 1, then answer. If n is equal to 1, then answer. Already answer. Okay. In the same way, n का value 1 है तो if part execute होगा here. n का value 1 है, this one. n का value 1 है, and then this one. Now start with actual execution like this. Sorry. Okay.
सो नाउ आपका स्टार्टिंग कहां से हुआ, फंक्शन कॉल कहां से हुआ, मेन से, द फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट फंक्शन आपने यहां से कॉल किया n इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ एल्स पार्ट में आपने n इज इक्वल टू 2 के साथ में जाते हैं। सो इफ n इज इक्वल टू 2 देन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, और आप एल्स पार्ट में सीधे पहुंचेंगे n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1। सो दिस फंक्शन, तो फंक्शन कॉलिंग किस तरीके से हो रहा है, फर्स्ट इज दिस वन जो कि मेन से हुआ, फिर फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, once again call itself। okay, now if n is equal to 1 then call itself, but if part execute होगा, that is the base criteria। तो सबसे पहले मूव होगा from a to c। ओके, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, आप सबसे पहले डिस्क को मूव करेंगे टावर ए से टावर सी की तरफ, डेफिनेटली ऊपर आपका स्मॉलर डिस्क ही है। नाउ इफ दिस इज ओवर देन कम टू द सेकेंड लाइन, आप अब सेकेंड लाइन के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज if the task is over, okay, if the task is over, तो आप मूव करेंगे प्रीवियस लाइन के ऊपर, यानी कंट्रोल कहां पे आएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, एंड द नेक्स्ट लाइन आपका क्या लिखा है, दैट इज वंस अगेन n का वैल्यू 1 के साथ। सो आंसर विल बी मूव फ्रॉम a to b like this। okay, now if this is over then go back and come to the third line। else part का जो थर्ड लाइन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। so n का वैल्यू कितना है, that is 1। so if n is equal to 1 so call itself, but the value of n is 1। so come to the आपने फंक्शन को कॉल किया n की वैल्यू 1 के साथ, तो if part एग्जीक्यूट होगा और if part में आंसर आएगा, that is move from c to b, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, that is move from c to b। okay, if this is over then go back and then go back। okay, और पिछली कॉलिंग में जो आपने मेन से पहली बार जब फंक्शन कॉल किया था, तो else पार्ट का पहला लाइन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ कम टू द सेकेंड लाइन, एंड द सेकेंड लाइन इज दिस, ये भी आपका अब एग्जीक्यूट कंप्लीट तब होगा जब ये डिस्प्ले हो जाएगा, इफ n इज इक्वल टू 1 देन कॉल इटसेल्फ, एंड इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो फोर्थ मूव विल बी मूव फ्रॉम a to c। नाउ गो बैक, सो सेकेंड लाइन इज ओवर else पार्ट में। now come to the third line, and the third line is this, if n is equal to 2 then move from, आप फंक्शन को अपने आप से कॉल करेंगे n की वैल्यू 2 के साथ में। so else पार्ट में आप फिर से जा रहे हैं, so first one is this one, if n is equal to 1 then answer is move from b to c like this one। आप देख सकते हैं आपने ये मूव दिया। now then go back, now come to the second line, क्योंकि आपने फंक्शन को यहां से कॉल किया था else पार्ट में, so this is the else part, तो else पार्ट अभी चल रहा है इसका, so first line is over, the second line is this one, this is the fixed number, second line, if n is equal to 1 then answer will be move from b to c, and then go back and come to the third line, and the third line, if n is equal to 1 then answer will be move from a to c। so in this way go back and then go back, now the third line is over and then go back। okay, ये कहां पे हम चले गए, जहां से मेन फंक्शन को कॉल किया था। so in this way आपके पास में जो आंसर है, the first move, आपके पास 7 मूव्स हुए थे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था एनिमेशन के थ्रू। so the first move from पिन A से पिन C के ऊपर पहले मूव करेंगे, then A to B, C to B, and then A to C, B to A, B to C, and then A to C। आप वहां पे पीछे वीडियो में भी आप देख सकते हैं। okay, this is the one thing। so the first move from pin A to C, another move from pin A to B, and then after that C to B, and then A to C। okay, and the fifth move from B to A, and then B to C, and then A to C। so these are the operations। okay, ये मैंने 3 डिस्क के साथ में अपने एल्गोरिथम को और अपने लॉजिक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इन द सेम वे आप इसको समझ सकते हैं 4 डिस्क के साथ में भी। सपोज यू हैव अ टोटल नंबर ऑफ डिस्क 4 लाइक दिस। तो अगर आपने मेन से कॉल किया होगा इस फंक्शन को नंबर ऑफ डिस्क 4 के साथ, तो सबसे पहले आप एल्स पार्ट में जाएंगे। यू कैन सी हियर, नाउ इफ n इज इक्वल टू 3 तो आप फिर से else पार्ट में मूव करेंगे। ओके, if n is equal to 2 in the same way, okay, if n is equal to 2 then else part,
If n is equal to 1, then your answer like this. So movement कैसे हो रहा है, जो मैं blue color से यहाँ पे indicate किया है. So first control goes to here. Okay. Now after that control कहाँ पे जाएगा, अपने आप call करेगा n की value 4 minus 1 that is 3, and then once again 3 minus 1 that is 2, and once again 2 minus 1 that is 1, and your answer. यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट टर्म्स को यहाँ पे मूव ना दे करके यहीं पर printf स्टेटमेंट दे दिया. if n is greater than 1, so the third line is only printf statement. So this one move from A to C. Okay, so in the same way this one, so execution आपका कुछ इस तरीके से होगा. Now this line and then this one, control कहाँ पे जा रहा है, now this one and your answer. Now this is your answer. Now come to this line, this one, and call itself and your answer. Now come back, your answer. Call third line, call itself and your answer. Okay, call back. So this next line, your answer. You call itself with n is equal to 2. This is your answer. Okay, call itself. This is your answer. Go back. Now this is the 14th move, and this is your 16th move. So n is equal to 4 के केस में ये डिस्क होंगे. अगर आप अपने आप से बना के देखेंगे तो यही मूव्स आएंगे और यही आपका आंसर होगा. अगर सी में कोड लिखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इसी तरह के कुछ आंसर्स आपके ऊपर डिस्प्ले होंगे. So today is enough. Thank you so much.